Hello students, good afternoon to all of you. In the last video we discussed about spherical refractive medium and we discussed how to derive those 6 derivations related to the expression of spherical refractive medium, that is minus NO by U plus Ni by V equals to Ni minus NO by R. Okay. In this video we will start with the lens. Now what is a lens? Lens किसको बोलते हैं? Lens is nothing but it is a medium. It is a refracting medium. एक मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्शन होगा बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. ओके, एक मीडियम है जिसमें दो बाउंड्री होंगे, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, बट आउट ऑफ बोथ द सरफेसेस एटलीस्ट वन नीड टू बी कर्व, द अदर वन मे बी प्लेन, may not be plane. Okay, like this is a lens which has a refracting medium bounded by two refracting surfaces. These are two refracting surfaces. These refracting surfaces can be curved or can be a plane or a curve, but out of both the surfaces at least कम से कम एक surface curve होना चाहिए. So this is the definition of a lens. It's nothing but it is a transparent refracting medium. Okay, bounded by two refracting surfaces, out of which one of the refracting surface must be spherical in shape or curve. Now similarly, depending on this definition, the lenses are of two different types. One is called convex. Okay, another is called concave. Now what is the standard definition of convex and concave? ये बहुत ही मतलब बच्चों वाला definition है, and we feel it's like a very kiddish type definition, kiddish, बच्चों वाला. Okay, if I say convex means those lenses where the middle part is thick and the outer edges are thin, and concave is those lenses where the middle part is thin and the outer edges are thick. This is the most standard definition of convex and concave. Okay, next, when we talk about a lens has two refracting surfaces, two spherical surfaces. So it has two center of curvature, it has two radius of curvature. ये सब चीज समझना पड़ेगा. इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. ठीक है ना क्लास? ओके, तो हम उसी की डिपेंडिंग ऑन दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर लुक लाइक, द लेंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. Like there are different types of convex lens also we have, there are different types of concave lens also we have. So we'll discuss about those things are written in the notes. So let's go to the types of convex lens. ये हो गया convex lens का, और यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा concave lens का. ओके, सबसे पहले what is a biconvex lens? Biconvex lens क्या होता है? First you draw a baseline. Okay, both sides will be convex, that is bulging outward, but the level of bulging will be different. एक ज्यादा होगा, एक कम होगा. उसका डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है? If I talk about this surface, इसको अगर तुम सेंटर गोल घुमाओगे तो यहां पे क्या पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1. इसको अगर तुम गोल घुमाओगे तो इसका गोला ज्यादा बड़ा बनेगा, दिस इज योर C2. ओके, तो यहां से यहां तक दिस इज योर R1, इस सरफेस का C1 यहां पे है, तो यहां से यहां तक R1, इस सरफेस का C2 यहां पे है, तो यहां से यहां तक R2. सो R1 and R2 आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ अ बाइकन्वेक्स लेंस. क्लियर? ओके, अब ये हो गया R1 2. अब नेक्स्ट R1 पॉजिटिव होगा कि R2 पॉजिटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा कि R1 पॉजिटिव होगा. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन वेयर द ऑब्जेक्ट इज, वेयर द ऑब्जेक्ट इज हियर और द ऑब्जेक्ट इज हियर. अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो दिस इज द इंसिडेंट रे, व्हेन R1 इज पॉजिटिव, R2 इज नेगेटिव. अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, फॉर एग्जांपल एक चलो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना? तो यहां से यहां तक दिस इज योर R1 और यहां से यहां तक दिस इज योर R2. डेफिनेशन ऐसा होता है C2 एंड C1. तो इस सरफेस का दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2. अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर R1, सेम डायरेक्शन, R1 इज पॉजिटिव बट R2 इज नेगेटिव. लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर यहां पे हो गया देन क्या हो जाएगा? ओके, तब अगर मैं इसको R1 बोलूं तो R1 बिकम्स नेगेटिव, R2 बिकम्स positive. Okay, but this surface's name also change. अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो दिस बिकम्स सरफेस 1, दिस बिकम्स सरफेस 2.
that means this becomes R2, this becomes R1. Surface 1 का this becomes C1, this becomes C2. So depending on the surfaces, okay, so that means अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखूं कि वहां रखूं, can I say R1 will be always positive and R2 will be always negative? तो मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा है, पहले तुमको बोला मैंने कि R1 पॉजिटिव भी हो सकता है, R2 पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन देन व्हाट आई टोल्ड यू, सरफेस इस पे डिपेंड करता है. तो अगर ऑब्जेक्ट के क्लोज वाला सरफेस को सरफेस 1 बोलेंगे, तो इस सरफेस का जो सेंटर होगा उसको C1 बोलेंगे, और सरफेस का जो रेडियस होगा दैट इज R1. That is always positive. I hope you understand positive negative case class. So what you need to understand is these positive negative cases, these things are required in numericals. तो ये सब चीज ध्यान रखना, अच्छे से समझना, ये सब न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा बेटा. ओके, नेक्स्ट is called as equiconvex. Now what is the meaning of equiconvex? Equiconvex means what? Both sides the bulging will be equal. If I say both sides the bulging will be equal, then इसका जो रेड सेंटर C1 इधर होगा और इसका जो सेंटर C2 इधर होगा, both the radius will be equal. Since the bulgings are equal, same circle will form, same radius circle will form, and both the radius will be equal. ओके, एंड साइन कन्वेंशन तुम्हें समझ में आ गया. ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट के पास वाला सरफेस सरफेस 1 हो गया, उससे तुम C1 निकाल लो, वहां से देख लो R1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट इज बाइकन्वेक्स हो गया, इक्विकन्वेक्स हो गया. नेक्स्ट इज प्लानोकन्वेक्स. नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. प्लानोकन्वेक्स मींस व्हाट? One side plane, the other side is bulging out, or that one side which is plane can be in left, can be in right. कुछ भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है. ओके, तो यहां से क्या पता चला, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है तो इसके लिए सरफेस 1 इधर, सरफेस 2 इधर. अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसके लिए सरफेस 1 कर्व है, सरफेस 2 प्लेन है. यू अंडरस्टैंड दिस? तो इनमें से किसी जो प्लेन है उसका रेडियस इंफिनिटी होगा, प्लेन सरफेसेस का रेडियस इंफिनिटी होता है, और R2 का वैल्यू कुछ होगा, दैट इज -R, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पे कहीं होगा और ये होगा रेडियस. क्लियर? अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट इधर, रेडियस इधर, दैट मींस नेगेटिव. यू अंडरस्टैंड? अगेन दिस डिपेंड्स ऑन, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लोज टू द कर्व पार्ट, देन इसका सेंटर इधर होगा, तो ये हो गया तुम्हारा R1. तो इस केस में R1 होगा प्लस R और R2 होगा नेगेटिव, इंफिनिटी. R2 will be negative because so which one is R1 and which one is R2, which one is surface 1, which one is surface 2, that depends on the object. I hope you understand what is plano-convex. So in case of a plano-convex, one of the surface which is plane, the radius of curvature is infinity. The other surface has some radius of curvature, and the sign convention depends on where the object is. Okay, class. Now the last one is concavo-convex. concavo-convex मतलब वो कनकेव टाइप होगा लेकिन होगा कन्वेक्स. कैसे? चांद बना दो. दिस इज अ कन्वेक्सो कनकेव. नाउ व्हाई concavo convex? Why convex? Because it satisfies the base definition. In the middle it is thick, at the outer edges it is thin. That means it is a convex lens. Now why concave? Why concavo? Because it is type of concave. Because both the surfaces are not bulging out. One of the surfaces is bulging out, the other surface is going inside. Okay, that's why it's called concave. Or it can be of this type also. ऐसे भी हो सकता है. तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसका सेंटर, दोनों का अलग अलग सेंटर बनेगा ना बेटा, एक होगा C1 एक होगा C2, तो दोनों का रेडियस एक ही तरफ होगा. ओके, दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो दोनों R1 R2 ऑफ कोर्स दे आर नॉट इक्वल एंड बोथ विल बी पॉजिटिव. और अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस साइड में है, ओके, तो अगर कन्वेक्स साइड में है, कन्वेक्स साइड, ऑब्जेक्ट अगर कन्वेक्स साइड में है दोनों पॉजिटिव होगा. अगर ऑब्जेक्ट कनकेव साइड में है तब इंसिडेंट रे इधर और R1 R2 इधर, then R1 R2 will be negative. So positive negative is not fixed, it depends on the object. You understand different types of convex lens and why it is called convex, because it is thick in the middle, thin at the end. And why it is called concavo convex, because it is type of concave lens. Concave side भी होता है इसका. Now same goes for concave. पहला biconcave. If I talk about biconcave, what will happen? एक साइड
कम बेंडिंग होगा, एक साइड ज्यादा बेंडिंग होगा. ओके, कर्वेचर विल नॉट बी सेम. दैट मीन्स दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा. और साइन कन्वेंशन आई होप यू अंडरस्टैंड कैन नाउ, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज इक्यू कनकेव. So if we talk about eq concave, what will happen? Both sides the curvature will equally bend. That means both the radius will be equal. Okay. Next, अगर बोलूं प्लानो कनकेव, प्लानो कनकेव में क्या होगा? एक साइड प्लेन होगा, एक साइड कर्व होगा. वो प्लेन किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट और राइट. तो यहां भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होगा और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस या तो माइनस होगा, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट. देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसका सेंटर इधर है, रेडियस इधर होगा, नेगेटिव. ओके, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो पॉजिटिव. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड फोर्थ वन इज कन्वेक्सो कनकेव. कन्वेक्सो कनकेव. व्हाट इज कन्वेक्सो कनकेव? कन्वेक्सो क्योंकि ऐसा है, एंड कनकेव क्योंकि देखो इसका मिडिल थिन है एंड आउटर इज थिक है. ऊपर नीचे मोटा है, बीच में पतला. दिस इज कॉल्ड कन्वेक्सो कनकेव. इसका दोनों सी आर एक ही डायरेक्शन में होगा. दैट इज बोथ will not be equal, of course, and they can be positive, they can be negative, depending on the object position. So these are the different types of convex lens. These are different types of concave lens class. Okay. Now, in class 10, you studied that a convex lens is called as converging lens, right? This definition, this statement is actually wrong. This statement is not correct. Convex lens is not converging lens. Convex lens may act as converging as well as diverging depending on the outside medium. Those things are discussed in form of a ray diagram. तो अभी क्लास 12 के लिए तुम कभी मत बोलना that a convex lens is a converging lens. ये ऐसा नहीं होता है बेटा. Convex lens converging भी हो सकता है, diverging भी हो सकता है. Now the question who don't know what is converging? Converging means what? Any ray fall on a lens. If that ray bends towards the principal axis, it is converging. If it bends away from the principal axis, it is called diverging. जो principal axis होगा उस तरफ bend किया तो वो converging ray हो गया. That means वो converging lens हो गया. अगर principal axis के away bend करवाया, then it becomes diverging. तो हमने क्लास में पढ़ा था कि convex lens जब भी होगा, अगर मैं यहाँ पे एक रे भेजू तो वो कन्वर्ज करता है, और कनकेव लेंस जब होगा अगर मैं यहाँ पे रे भेजू तो वो डाइवर्ज करता है. दिस थिंग वी स्टडीड इन क्लास 10. सो वी डिस्कस्ड, वी हैव अंडरस्टूड दैट अ कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कन्वेक्स लेंस मे डू दिस आल्सो. कन्वेक्स लेंस में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. कब होता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, तो कब होता है? जब उसका नेचर चेंज होता है. सी, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस. मोटा करके कन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ठीक है ना. एक कन्वेक्स लेंस का इनसाइड जो मीडियम है, अब इसको डेवलप कर दो, वो N2 है और आउटसाइड का मीडियम N1 है. मैंने बोला N2 बड़ा है N1 से. दिस इज द नॉर्मल कंडीशन. व्हाई नॉर्मल कंडीशन? जो लेंस होगा वो ग्लास से बना होगा, और लेंस को तुम नॉर्मली एयर में रखोगे, तो आउटसाइड मीडियम इज एयर एंड इनसाइड मीडियम इज ग्लास. ऑफ कोर्स ग्लास इफेक्टिव इंडेक्स इज मोर देन एयर. दैट इज नॉर्मल सिचुएशन. ओके, नाउ लेट्स टेक एनी रे. कोई भी एक रे लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक रे लेते हैं, फिर देखते हैं उस रे के साथ क्या हो रहा है. चलो एक रे लिए ऐसा करके. ओके, अब यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है डेंस रेयर एंड डेंसर मीडियम का. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल. फिर मुझे चेक करना पड़ेगा इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल और इधर नॉर्मल. सो इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा? इस सरफेस का नॉर्मल होने के लिए सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर दो, ये रहा C1. ओके, तो यहां से यहां तक डॉटेड लाइन खींच दो. दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस. ओके, रे इज गोइंग लाइक दिस, स्ट्रेट जा रहा है, बट इट इज एंटरिंग टुवर्ड्स डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम. इट इज एंटरिंग टुवर्ड्स डेंसर मीडियम, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. बेंड कर गया. ओके, नाउ at this point again there is an interface. So again यहाँ इसका इस सरफेस का C इधर कहीं पे होगा. Again draw a normal. अब the ray is going like this.
So ray is going towards denser medium or rarer medium? It is entering towards rarer medium. So it will bend away from the normal. ऐसे जा रहा था, normal इस तरफ है normal, तो it will bend away from the normal. So how the ray is going? The ray is going towards the principal axis. So this is called converging nature. Okay? अब देखो, यही लेंस डाइवर्जिंग जैसा काम करेगा. Okay? क्यों काम करेगा? कैसे काम करेगा? ये जानना बहुत जरूरी है. बट मैं क्या कर दे रहा हूं? मैंने बोला, now I kept the lens in such a medium where the medium refractive index is more, which is abnormal case. It's just normal language use किया होगा ना. If I keep a lens inside a medium whose refractive index is more than the lens refractive index, then the lens act differently. अगर एक कन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग बन जाएगा. अगर कनकेव लेंस है तो वो डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग बन जाएगा. देखो कैसे बनता है, ठीक है ना. अगर क्या करें, here that to make a normal, तो इसका सेंटर कवरेज यहाँ पे कहीं पे होगा, तो तुम इसको ऐसे नॉर्मल बना लो, जस्ट रफली बना लो. सो द रे इज गोइंग स्ट्रेट. नाउ द रे इज एंटरिंग टुवर्ड्स डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम. अब N2 छोटा है N1 से, दैट मींस एंटरिंग टुवर्ड्स डेंसर रेयर मीडियम. यहाँ पे द रे वाज एंटरिंग टुवर्ड्स डेंसर मीडियम, तो अब बाहर का मीडियम ज्यादा डेंस है, so it is entering towards rarer medium. That means it will bend away from the normal like this. Clear class? Bending away from the normal. अब क्या होगा? Again फिर से normal बनाओ. This is the normal. I hope you understand class. अब मीडियम कहाँ जा रहा है? रे कहाँ जा रहा है? This is the normal. Now ray is going towards N1. N1 is more. That means ray is going towards denser medium now. यहाँ पे ray was going towards rarer medium. So instead of going towards the normal, it is bending away from the normal. Up, the ray is going like this. Okay. अब ये denser medium में जा रहा है. That means it towards the normal bend करेगा. इस तरह bend नहीं करेगा, इस तरह bend करेगा. तो ray is going like this. It will bend towards the normal. So और उस तरफ जा रहा है. So the ray is actually like, the ray is actually diverging. So here a convex lens is acting like a diverging lens. Here, a convex lens is acting like a converging lens. I hope you understand. Similar fashion, you can go for the next two figures on your own, where you will see a concave lens. When the concave lens material medium refractive index is more than the outside medium, it is acting like diverging. But if it is less, it is acting like converging. Okay? बाकी के दो ray diagram तुम्हारा काम. Now, depending on this, there are few conceptual problems which you studied in class 10 also. तुम्हें बोलेगा ये एक लेंस है and two rays are given to you. But complete the ray diagram. Okay, in two cases. First case, N2 is greater than N1. Second case, N2 is less than N1. And the third case, N2 equals to N1. So in the first case, when N2 is greater than N1, मतलब अंदर का इफेक्ट इंडेक्स बड़ा है, तो जब अंदर का इफेक्ट इंडेक्स बड़ा होता है, that is normal case. तो in convex lens, it will converge. Since it is a normal. अगर दो लेंस दिया रहता है ऐसे करके N2 and N1. So since N2 is more than N1, that means in case of a concave lens, it will diverge. Now in this case, second case, क्या हो जाएगा? N2 is less than 1. Outside medium is more dense. Okay, that means the convex lens will act like a diverging lens, and the concave lens will act like a converging lens. नेक्स्ट अगर N2 और N1 सेम होगा तो क्या हो जाएगा? सीधा चला जाएगा भैया. आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास. ओके, नेक्स्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, समटाइम्स a question comes like this. A lens is made of two types of glass of different refractive index. एक flint glass, एक plain glass. एक लेंस जो बना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लेंस. ये एक लेंस है, ठीक है ना? ये एक लेंस है. ये लेंस का ये पूरा सरफेस एक ही ग्लास से बना होगा. अब मेरे पास एक स्पेशल लेंस है जो अलग अलग ग्लास से बना है. इधर एक दूसरा लेयर, इधर दूसरा लेयर, एक डार्क है. आई थिंक यू हैव सीन इन द विंडोज आल्सो. वी हैव फ्यू विंडोज वेयर द ग्लास आर नॉट ट्रांसपेरेंट and few windows where the glass is transparent. So for example, transparent glass, not transparent glass, transparent glass like this. So if a lens is made of two different materials, ऐसा करके दिखा देते हैं. And there is an object. So how many images will form by this lens?
ओके, तो इमेजेस फॉर्म कैसे होते हैं? यहां से रे निकलेगा ऐसे करके, ऐसा नो क्लास. These rays will refract and they will meet at a point. That is called image. यही होता है. अब the rays which are going to the transparent medium, they will refract in one way because there the refractive index is different. And the rays which has a denser medium, they will refract in other way. So there will be two images, I1 and I2. So any device, any lens or mirror, okay, if they are made up of n different mediums, then we will have n different images of our object. Why? Because of different refractions. Okay, यहां से जो सारे रेज निकलेंगे, वो रेज जो फर्स्ट मीडियम में घुसेगा. ओके, फॉर एग्जांपल टू मीडियम्स है, ट्रांसपेरेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और डार्क का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है. सो जो वो वाला मीडियम में गिरेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दे विल रिफ्रैक्ट इन वन वे, and the rays which are falling on the different refractive index n2, they will bend in a different way. So they will meet at two different points. That means we will have two different images. This is a very important question which asks in the examination. Okay. Now, if you check out your notes, उसके बाद तुम्हारे पास वो सब चीज नोट्स में है जो कि क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है. So I have written all together so that we can have a review. That ray diagrams, different ray diagrams related to lens. Okay. तो ये रे डायग्राम्स काम तुम्हारा है बेटा. बट हियर आई विल नॉट डू एनीथिंग आउट हियर, बट आई विल टीच यू फ्यू थिंग्स. इन रे डायग्राम्स में दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू स्टडी. ओके, व्हेनेवर यू हैव टू ड्रॉ अ रे डायग्राम, you need two rays. So we have special 3 rays, out of which 2 rays you have to use for making a ray diagram. First, draw a ray parallel to principal axis. It will pass through focus. Okay. Next, draw a ray passing through focus. It will become parallel. And the next, draw a ray which is passing through optical center. It will pass directly. Now, before going to these, let's discuss a little bit about focus. ये फोकस क्या होता है, ये तुमने नहीं पढ़ा हुआ है. ओके, हमने नहीं पढ़ा है. व्हाट इज फोकस? तो फोकस क्या है? वी आर टेकिंग अ कन्वेक्स लेंस. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस. ओके, अब जब हम रे डायग्राम बनाएंगे, आई विल नेवर शो द रिफ्रैक्शन इनसाइड द लेंस. रे डायग्राम में हम इनसाइड द लेंस रिफ्रैक्शन नहीं दिखाते हैं. हमारे लिए ये एक लाइन ही लेंस है. ओके, नाउ व्हाट इज फोकस? Focus means what? Send parallel rays parallel to principal axis. I want the focus of any convex lens, concave lens, any lens. I want focus. तो क्या करना पड़ेगा? Send a parallel ray parallel to principal axis. They will meet at a point. That is called focus. They meet at a point on the principal axis. That is called focus. Okay? अब ये focal distance किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे focal. O से F तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. तो आप मुझे बताओ, इस केस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑलवेज पॉजिटिव. क्यों ऑलवेज पॉजिटिव? O से F जा रहे हैं ना, O से F, और इंसिडेंट रे भी ऐसे जा रहा है, मैं भी ऐसे जा रहा हूं, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर मैं एक कंकेव लेंस का बात करूं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अगेन आई वांट द फोकस ऑफ दिस कंकेव लेंस. अगेन सेंड पैरेलल रेज. ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस? इज दैट send parallel rays parallel to principal axis. They meet or appears to meet at a point on the principal axis. That is called focus. So, in case of a convex lens, they meet at a point. But in case of a concave lens, they never meet. They diverge. So, they appears to meet at a point. That is called focus. That means this is the optical center. Then this is called focal length. तो यहाँ पे जो OF है वो फोकल लेंथ है. इट इज ऑलवेज नेगेटिव. क्यों? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाएंगे ऑलवेज. चाहे तुम इंसिडेंट रे यहां से भेजो कि यहां से भेजो, अगर मैंने इंसिडेंट रे यहां से भेजा तब फोकस किधर होगा? इट विल डाइवर्स. देन द फोकस विल बी हियर. डू यू अंडरस्टैंड क्लास? देन आल्सो इट इज नेगेटिव. सो ऑलवेज इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस द फोकल लेंथ इज नेगेटिव. इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फोकस. नाउ for understanding the ray diagram, one more thing you need to understand. What is focal plane? Focal plane क्या होता है? तो focus is a point where
those parallel rays meet after refraction which are parallel to principal axis. Parallel rays which are parallel to principal axis, they meet at a point that is called focus. But if we have two rays which are not parallel to principal axis but they are parallel to each other like this, okay, these are the two rays which are not parallel to principal axis but they are parallel to each other, where they will meet. So we know the focus is somewhere here. So passing through a focus, you have a plane which is perpendicular to the principal axis. तो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर एक प्लेन है ऐसा करके, ओके, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में मीट करेगा. ओके, सो दे विल मीट एट अ पॉइंट लाइक दिस. ओके, वेयर दिस इज द इमेज and this is the image distance. The image distance will be always focal length. So what is focal plane? Focal plane is a perpendicular plane passing through focus and perpendicular to the principal axis. There, all the rays which are parallel to each other but not parallel to principal axis meet. Okay, ये जो straight नहीं जा रहा बेटा, ये bend कर रहा है. तुम रे डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा. तो focal plane क्या है और focus क्या है, डिफरेंस समझ में आया. Focus is a point on the principal axis where those rays meet which are parallel to each other as well as parallel to principal axis. And focal plane is a plane which is perpendicular to principal axis and passing through focus where those rays meet which are parallel to each other but not parallel to principal axis. Okay. Now, if I go to the ray diagrams, for the ray diagrams, what you do? तुम simply एक plane लो, एक line लोगे और मुझे तीन रेज यूज करना है. ओके, पहला इधर F, इधर F, इधर 2F, इधर 2F. पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस. दूसरा रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम पैरेलल. तीसरा रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. ओके, सो आउट ऑफ दीज थ्री रेज यू हैव टू यूज एनी टू रे टू ड्रॉ द रे डायग्राम. यही अगर ये तो कन्वेक्स लेंस हो गया था बेटा, अब कनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं. Concave lens में क्या होगा? Parallel to principal axis, they will diverge in such a way that will pass through focus. तो इसको diverge करा तो यहां से. Next, इसका क्या होगा? Passing through focus. Okay? इसका थोड़ा अजीब सा होता है, not passing through focus. Okay, मान लो एक रे फोकस की तरफ आ रहा है ऐसे करके. is coming towards the focus. So what will happen? It becomes parallel. जैसे यहाँ पे focus से pass किया becomes parallel. It is coming towards the focus becomes parallel. And the next one is passing through optical center. The ray which is passing through optical center will go undivided. I think revision of class 10 is going on class. Okay. Now इस सारे knowledge को लेके अब हम थोड़ा बहुत ray diagram बात करते हैं. Only few ray diagrams I will discuss here which are very unique and which is very important, which asks in the exam many times. ओके, फर्स्ट हम सिर्फ कन्वेक्स कनकेव को लेके बात करूंगा मैं. कन्वेक्स तुम्हारा काम है बेटा. आई विल डिस्कस ओनली अबाउट द कन्वेक्स रे डायग्राम्स. ओके, नाउ इन केस ऑफ कन्वेक्स रे डायग्राम पहला हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अब तुम रे डायग्राम बनाओगे कैसे? पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, फिर एक वर्टिकल लाइन खींचो. लेंसेस छोड़ दो, भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट लेंस एंड ऑल. ओके, ड्रॉ वर्टिकल लाइन, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. बना दिया मैंने. अब 3 सेंटीमीटर में F बनाओ, 6 सेंटीमीटर में 2F बनाओ. ये डिस्टेंस याद रखना. अगेन 3 सेंटीमीटर F, 6 सेंटीमीटर 2F. अब मुझे एक ऑब्जेक्ट कहां पे? इंफिनिटी में. अब तुम्हें ये समझना है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी मतलब क्या. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है. दैट मीन्स द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू. बस, दिस इज द मेन फंडा यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लास. So whenever we say object at infinity, that means the rays are parallel. Now, rays are parallel. तुम देखो नोट्स में 2 रे डायग्राम है इस टॉपिक के अंदर. Rays are parallel can be of 2 different types. These are also rays are parallel, but they are parallel to principal axis. So they meet at a focus. So where the image is at focus. The image is real because real image is formed. So those characteristics, the table which is given after the ray diagram, that you need to know about. Okay, and the image is real. So real images are erect image. Okay, अब इस रे डायग्राम में फेलियर कहां पे है?
हमें दिख रहा है कि इमेज रियल है बिकॉज रियल लाइन्स आर कमिंग, रियल रेज आर मीटिंग आउट देयर, बट कैन यू सी द इमेज इज इरेक्ट? ये तो इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इरेक्ट दिख रहा है, इरेक्ट मतलब समझते हैं स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड. क्या इमेज दिख रहा है? इरेक्ट. दैट्स व्हाई आई से डोंट प्रेफर दिस रे डायग्राम. ओके, सो वी विल डू सम अदर रे डायग्राम जो थोड़ा जुगाड़ वाला मेथड है. तो instead of taking the rays which are parallel to principal axis, we take two rays which are parallel to each other but not parallel to principal axis. तो तुम क्या करो, एक रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, ठीक है क्लास, और एक रे इससे पैरेलल भेजो यहां तक, लेंस तक. ओके, अब क्या करो, मुझे पता है इन दोनों रेस का जो इमेज फॉर्म होगा वो फोकस में फॉर्म होगा. तो तुम क्या करो, पहले इमेज बनाओ, ये रहा इमेज, थोड़ा जुगाड़ मेथड बना रहा है, ठीक है ना. देन यू ज्वाइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ओके, सो दिस इज योर रे डायग्राम and then you can draw the lens for show off. So here the object is at infinity because the rays are parallel and the image is at focus. And what is the image distance? Focal length. Image distance मतलब क्या, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का, इमेज तक का डिस्टेंस. इमेज इज फोकस में, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ. हो गया. नाउ आई कैन सी द इमेज इज इरेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड. ओके, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट. मैं साथ वहां पे इरेक्ट कर रहा था क्लास, थोड़ा गलती हो गया. यहाँ जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगा, ये दिख नहीं रहा है मेरे को, तो वे प्रेफर दिस रे डायग्राम बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड. आई कैन सी हियर. ओके, वन इज दिस, नेक्स्ट इज योर जॉब. आई हैव डिस्कस द लास्ट रे डायग्राम. ओके, दिस इज अ वेरी यूनिक केस, कान फाड़ के सुनना. ओके, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ वर्टिकल लाइन, और 3 cm focus, 6 cm 2f, again 3 cm focus, 6 cm 2f. Now object is between f and o. ऑब्जेक्ट f और o के बीच में है, यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है a b. आई वांट द इमेज. तो कौन से तीन रे यूज करते हैं? ये तीन रे यूज करते हैं. तो टेक अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, so I know it will pass through focus, and take a ray passing through optical center. Now, these two rays will ever meet? No, they are spreading out. That means they will never meet. That means the image is virtual. So let them appears to meet. So they will appears to meet somewhere here. So this is the image A dash, B dash. Okay. Then up lens बना दो. ये हो गया lens. Why I am discussing this ray diagram? Because ray diagram has no hard, nothing is important in that. Like I mean to say is nothing is so tricky in the ray diagram. This ray diagram is very simple. Now what is the trick about this concept? This is the only case of virtual image which is a large image. और कोई लेंस, कोई मिरर वर्चुअल इमेज तो बनाता है लेकिन इनलार्ज नहीं बनाता है. कन्वेक्स लेंस इज द, ये दिमाग अच्छे से घुसा लेगा. Convex lens is the only lens which make a virtual image which is an erect image and enlarge, बड़ा बनाता है. Rest in case of a concave lens, all the images are virtual but they are diminished. If you go to the reflections, that is mirrors, okay, जो कैमरा फ्रेम से हटा दिया गया है अभी, mirrors में concave mirror है, convex mirror है. okay, convex mirrors जो होते हैं वो virtual image बनाते हैं लेकिन सारे diminished बनाते हैं. वैसे अगर मैं कनकेव मिरर का बात करूं, कनकेव मिरर, इसमें भी पोल और फोकस के बीच का जो ऑब्जेक्ट होता है, इसके कारण जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है लेकिन इनलार्ज बनता है. सो दिस आर टू केसेस. ओके, सो फॉरगेट अबाउट दिस बिकॉज़ दिस इज नॉट इन द सिलेबस. सो देयर इज ओनली वन केस इन केस ऑफ अ लेंस वेयर द इमेज इज वर्चुअल एंड इनलार्ज. सिर्फ एक ही केस, दैट इज इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O and F. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा वो हर टाइम वर्चुअल इमेज बनाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्चुअल इमेज बनाएगा फाइन. वर्चुअल इमेज तो कन्वेक्स लेंस भी, कनकेव लेंस भी बनाते हैं, बट ये इनलार्ज वर्चुअल इमेज बनाएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, सिंपल माइक्रोस्कोप्स. ये अगर ऐसा नहीं होता ना तो हम वो इंस्ट्रूमेंट्स कभी नहीं बना पाते. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास. ओके, तो ये चीज भूलना नहीं है. यू कैनॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस, दैट अ कन्वेक्स लेंस produce a virtual as well as an enlarged image when the object is between F and O. Okay, अब
छोटा और एक चीज हम डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज विद रिलेटेड टू कनकेव लेंस. फॉर एग्जांपल दिस इज अ कनकेव लेंस. ठीक है. If you check out the ray diagrams for convex lens, there are 6 positions of object. 6 positions. ऐसे 6 positions. एक infinity, दूसरा beyond 2f, मतलब infinity और 2f के बीच में, infinity, 2f, beyond 2f, at 2f, between f and 2f, at f, between o and f. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 positions of object. ठीक है. Similarly, इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस भी तो 6 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए ना बेटा. ऐसा क्यों नहीं होता है? रीजन क्या है? ये रीजन को दिमाग में घुसा लो तो तुम्हें रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा. इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस आल्सो मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मेक अ वर्टिकल लाइन. 3 सेंटीमीटर f, 6 सेंटीमीटर 2f, 3 सेंटीमीटर f, 6 सेंटीमीटर 2f. तो यहां भी तो 6 पोजीशन होती है ना ऑब्जेक्ट का. इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f, एट 2f, एट बिटवीन f and 2f, एट f, बिटवीन o and f. लेकिन यहां पे 6 पोजीशंस नहीं होता है, सिर्फ 2 पोजीशन होता है. एक एट इंफिनिटी, दूसरा एनीवेयर बिटवीन, कहीं भी रख दो. ऐसा क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑल द डिफरेंट 6 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल हैव डिफरेंट 6 पोजीशंस ऑफ इमेजेस. जब इंफिनिटी है तो इमेज फोकस पे है, जब यहां पे आया तो इमेज यहां पे चला गया, थोड़ा उधर आया. ठीक है ना. ऐसे करते 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 एट 2f आएगा, उसके बाद इधर आएगा. ओके, एट 2f कैसे बताऊं, रुको, इसका एक जनरलाइज वर्जन आपको बता देते हैं कैसे होता है इमेज फॉर्मेशन. अगर एक कन्वेक्स लेंस है आपके पास तो मेरे पास 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट का. f 2f, f 2f. पहला ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तीसरा एट 2f, बिटवीन f and 2f, एट f, बिटवीन o and f. ठीक है ना. इंफिनिटी में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज फॉर्म होता है कहां पे भैया? फोकस पे. ठीक है. उसके बियॉन्ड 2f जो होगा उसका इमेज फॉर्म होगा कहां पे? बिटवीन f and 2f. यहां पे होगा, फिर यहां पे होगा. एट 2f में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी एट 2f फॉर्म होगा. उसके बाद बिटवीन f and 2f इमेज बियॉन्ड 2f फॉर्म होगा और बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे. ठीक है ना. एट f इमेज इंफिनिटी में फॉर्म होगा. तो यहां से यहां गया ऑब्जेक्ट, यहां से यहां ट्रैवल किया, इमेज यहां से यहां ट्रैवल किया, और बिटवीन f and 2f इमेज वर्चुअल है. So at different positions of object we have different positions of images. That's why in case of a convex lens we have 6 different ray diagrams. Concave में क्या प्रॉब्लम है? अगर ऑब्जेक्ट को तुमने इंफिनिटी में रखा, मतलब पैरेलल रे भेजो, तो लेट्स चलो रे डायग्राम बना देता हूं मैं. एक रे सीधा प्रिंसिपल एक्सिस से पास करा दो, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो. ठीक है. और दूसरा रे इससे पैरेलल भेजो. ओके, पैरेलल भेजो which is passing through focus. तो any ray which is coming to focus becomes parallel. अब ये और ये रे कहीं मीट नहीं कर रहा, so they will meet at a point here that is focus. So the image is here. That means अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज फोकस पे. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में है इमेज फोकस पे. अब वो वर्चुअल इरेक्ट है. उसके बाद तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज हर वक्त ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में फॉर्म होगा. ठीक है क्लास. ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में फॉर्म होता है, मतलब अलग अलग पोजीशन नहीं होता है. इसलिए वी हैव ओनली 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस. वन पोजीशन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ओके, वेयर द इमेज एट फोकस. द अदर पोजीशन anywhere between optical center and infinity. Optical center and infinity बीच कहीं भी रख दो, इमेज कहां फॉर्म होगा? ऑलवेज बिटवीन O and F. डन. ऑलवेज इनके बीच में फॉर्म होता है, ऑलवेज. इसका मतलब ये हुआ कि इमेज हर वक्त अगर ये पे फॉर्म हुआ है ऐसे करके, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस. सो यहां से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ
concave lens. The image distance is always less than equals to focal length. Why I put a mod sign? To ignore the minus sign. तो इमेज डिस्टेंस का जो लेंथ होगा या तो मैक्सिमम फोकल लेंथ होगा या तो फोकल लेंथ से कम होगा, मतलब इसी के अंदर होगा इमेज जो भी फॉर्म होगी। ये अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस फॉर अ फोकल लेंथ, सॉरी इमेज डिस्टेंस ऑफ अ कनकेव लेंस। तो रेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक स्टार्ट हो सकता है, तो इमेज डिस्टेंस 0 से f तक स्टार्ट हो सकता है, मैक्सिमम f तक जाएगा, उसी के अंदर इमेज डिस्टेंस रहेगा। I hope you understand this from the ray diagram. You understand this from the ray diagram class. Okay. So मैंने पढ़ाऊंगा नहीं बोला, पढ़ा तो दिया बेटा। So हमने नोट्स में क्या पढ़ दिया, सब कुछ पढ़ लिया। We have completed till page number 21. Okay. The next topic is lens maker formula. This use of lens and all those things you will study on your own. So what is the time now? It is already 29 plus 11. Okay. So we will do the lens maker formula in the next video class. Okay, that's all for this video. Thank you very much.